पंजाबी फीवर पे राजदारियां पंजाबी वर्जन पहली बार ऑन द स्पॉट कोशिश करूंगा गाने की। है सारी राजदारियां नाल तेरे कह दे वो हंसी जो कह ना सके। अरे यार हाँ, तो आप मेरे साथ सागर वाली कवाली के साथ देख रहे हैं पंजाबी फीवर ओनली और फीवर एफएम। मेरे साथ कवनीत जी हैं, थोड़ी सी इमोशनल है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰग ਕੀ ਹੈ? प्यार मेरे हिसाब नाल सादगी है, सादगी सिंपलिसिटी। जे बुलिया तू इश्क वेख के किता ते देखिए है ना। सब कहते हैं कि कोई भी आजकल पोएट बन सकता है, इसमें सिर्फ फीलिंग्स चाहिए, इमोशंस चाहिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एक शायर को प्यार होना चाहिए एक बारी जिंदगी में, वो तब शायरी कर सकता है। ये मिथ है और रियलिटी है। रियलिटी है। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आरजे कवनीत संधू फ्रॉम पंजाबी फीवर 107.2 FM ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੂਫੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵਨੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਟ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ। मेरे रब ने हो जी, है ना। तो गुरदास मान साहब के लिए एक बार तेज की शोर मचाएंगे तो एक गाना उनको ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਲਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੌਂਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਕ ਸੌਂਗਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਛੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਛੱਲਾ। ਛੱਲੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਵਾਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੌਕਸਟਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਛੱਲਾ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹ ਡੈਬਿਊ ਸੌਂਗ ਸੀਗਾ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ I was not into music that much. I was a guitar player, a devotional guitar player. ਮੈਂ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਵਰਜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਤਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਵਰਿਟ ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਯੋ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਦੁਪਹਿਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਦ ਸੋਣਾ ਕਦ ਉੱਠਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माय मॉम बिकॉज आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप। अगर मैं होऊंगा भी कभी जिंदगी में तो पहली राजदार मेरी मां नहीं होना है आखिरी तक भी। बहुत बढ़िया। तो एक बारी वो सॉन्ग दी कुछ लाइंस ਮੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਫੜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗਿਟਾਰ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ ਤੇ ਹੈ ਗਿਆ ਗਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ लेकिन इमोशन साढ़े पंजाबी है क्योंकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚਲਾਉਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਲਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਡਸ ਆਫ ਲਵ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਵਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਹਣਿਓ ਹਾਏ ਸਜਣਾ ਵੇ मानक साहब पंजाबी फीवर पे राजदारियां पंजाबी वर्जन पहली बार ऑन द स्पॉट कोशिश करूंगा गाने की। खामोशियां ने चुन ली जुबान लब चुप लेकिन बोले अखां ओए दुख तेरा मेरे दुख वर्गा फिर कादा है दस फासला आजा वंड लेने आ दर्द सारे पा कुछ पल आके बह जा मेरे नाम कि सारी राज़दारियां नाल तेरे कह दे वो असी जो कह ना सके है सारी राज़दारियां नाल तेरे कह दे वो असी जो कह ना सके। मैंने गलती कर दी पहले गा के। Oh, that's such sweet. What a beautiful gesture she has shown. Thank you so much, Kavneet. मैं पहली बार पंजाबी च गाया है गाना ना, मैंने पता नहीं सी गाना ਹੁੰਦਾ। बहुत सही। तेरे अरे यार। क्या बात। Thank you, Kavneet. You are a real soul. I can see that. अभी शुरू हुआ है। अब आप पूछो 10 की करा। हाँ तो आप मेरे साथ सागर वाली कवाली के साथ देख रहे हैं पंजाबी फीवर ओनली और फीवर एफएम। मेरे साथ कवनीत जी हैं, थोड़ी सी इमोशनल है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੰਮ ਰੱਖੀਏ ਚਲਿਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੁਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਨੁਜ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਵ ਸੌਂਗਸ ਜਾਂ ਕਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਦਗੀ, ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਸਾਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਦਗੀ, ਤੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਰਡ, ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀज़ें नहीं होती थी। आजकल ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਟਰਮਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੈਨੋਸ਼ਿਪ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਏਜ 35 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਚਿਹਰਾ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਲਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਡੇਟ ही मूवी डेट होती है, ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੂਵੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ओल्ड स्कूल लवर ओल्ड स्कूल लवर या। ते एक ना मिथ कह सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि लड़के ना मूव ऑन नहीं कर पाते पर लड़कियां बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं। तुसी की कहने हो? मैं नहीं मान सकता इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई लड़की इश्क में होती है ना तो वो इरिस्पॉन्सिबल हो जाती है। इसलिए नहीं हो जाती इरिस्पॉन्सिबल कि उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, पर अब कोई जिम्मेदार इंसान उसके साथ है जिसे मोहब्बत करती है। तो जब कोई अपनी बागडोर ही आपके ऊपर छोड़ दे वो मूव ऑन तो नहीं कर सकता। लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उनको जवाबदेही होती है। उनको अगर उन्होंने लड़के किसी से इश्क किया है तो उनको लगता है कि इसी के साथ ख़त्म हो, और अगर वो खाली नहीं रह सकती, अगर उसकी गलती से उसकी डिसीज़न में गलती हो गई तो फिर माँ बाप की बात सुननी पड़ती है, क्योंकि एक मौका उन्हें मिल गया था। लड़की सिर्फ रिस्पॉन्सिबल जिस दिन हो जाए आपके साथ, आप समझ जाना कि वो आपसे बेइंतहा इश्क करती है। बिल्कुल। और मुंडे मूव ऑन हो जाते हैं इजीली? लड़के ईजिली मूव ऑन, मेरे को ऐसा लगता है लड़कों की ज़िंदगी में दोस्त यार, गलियाँ, घूमना फिरना, पार्टियाँ, ये सब उनको हेल्प करता है। पर जब किसी लड़के ने पी ली तो लड़का जो रोता है ना, लड़कियां उतनी भी नहीं रोती हैं। तो दोनों ही इश्क, इश्क का मतलब कोई फरेब तो है नहीं। इश्क लड़का करे या लड़की प्योर ही होगा, सिंपल होगा, सादगी होगी। आजकल का मुझे नहीं पता, मेरी उम्र से जो इश्क होता था वो यही होता था। और 10 की नाम में ना मैं ना एक पॉडकास्ट देख रही थी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि भी जो लड़कियां होती हैं ना वो कुछ भी कर सकती हैं, वो मना सकती हैं, अगर वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को मना सकती हैं, अगर अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर वो नहीं चाहती तो वो 10 साल का रिलेशनशिप भी ख़त्म कर देती हैं। और अगर वो चाहें तो वो जैसे मर्जी लड़के चाहे माने या ना माने वो मैनेज कर लेगी। इस पे क्या कहना? इस पे सिर्फ ये है कि अब आप जानते हो ये दोनों चीज़ें सच हैं, मैं भी मानता हूँ ये दोनों चीज़ें सच हैं। तो इन दोनों चीज़ों में से लड़का क्या चुनना चाहता है उतना लॉयल आपको बनना पड़ेगा। अगर लड़कियाँ, मेरे को लगता है लड़कियाँ आंखें पढ़ सकती हैं, लड़कियाँ गुड टच बैड टच समझती हैं ना बचपन से, तो वो अच्छी आंखें और बुरी आंखें भी समझती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में सादगी है, आप सच में मोहब्बत करते हो तो वो आपके लिए लड़ लेंगी। आप देखो, मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, मेरी मॉम हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं जानता हूँ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रांग है, और हर औरत इतनी ही स्ट्रांग होती है, बशर्ते कि आप रेसिप्रोकेशन में उनके साथ क्या करते हो, आप कैसे रहते हो। जितने आप अच्छे रहोगे उतने आपकी ज़िंदगी में अच्छाई होगी। तुसी शायरी भी बहुत सोहनी करते हो, कोई शेर इरशाद? ओके, तो ये शायरी है कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा अकेली चीज़ क्या है इस दुनिया में? इंसान नहीं, इंसान कभी अकेला नहीं होता। वो बोलता है कि मैं अकेला हूँ, पर कोई ना कोई उसे मिल ही जाता है, क्योंकि आजकल ये फ़ोन, सोशल मीडिया, अकेली सिर्फ रात होती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तन्हाई को अगर तुम रात से ज़्यादा जानते हो तो माँ कसम तुम औकात से ज़्यादा जानते हो। तन्हाई को अगर तुम रात से ज़्यादा जानते हो तो माँ कसम तुम औकात से ज़्यादा जानते हो। भीगने का मज़ा अगर बरसात से ज़्यादा जानते हो, भीख को अगर भिखारी से ज़्यादा जानते हो, यानी खैरात को अगर भिखारी से ज़्यादा जानते हो तो तुम माँ की कसम औकात से ज़्यादा जानते हो। और मेरे हाथ का स्पर्श अगर तुम अपने हाथ से ज़्यादा जानते हो तो माँ की कसम तुम औकात से ज़्यादा जानते हो। अगर मेरी कई बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं तो मम्मी कसम तुम मुझे आज से ज़्यादा जानते हो। बहुत ही बढ़िया। क्या थॉट था इसको लिखने के पीछे, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? कुड़ियां दी गल चल रही है तो मैं एक कुड़ी वास्ते लिखिया सी गाना है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। पंजाबी फीवर है तो पंजाबी शायरी लिखी थी, पोइट्री लिखी सी कि सोना मुख सी सब तो वक सी। क्या बात है, देखो कवनीत, आपने जो सवाल पूछा ना कि लड़कियां मूव ऑन कर जाती है नहीं करती, उस पर ही है पूरी पोइट्री मेरी, और आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो ये है कि सोना मुख सी सब तो वक सी, दिल दा मेरे ओही हो सुख सी,
ਹੱਸ ਕੇ ਜਦ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰੋ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਬਥੇਰਾ ਪਰ ਸਮਝ ਉਹ ਪਾਈ ਨਾ ਰੁਕੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੈ बहुत बढ़िया कोई मोमेंट ऐसा लाइफ में जो आपको लगा हो कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट मोमेंट है और कंप्लीट एक वो कंप्लीट वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ अब मैंने शायद सब कुछ कर लिया वो कौन सा मोमेंट था लाइफ का? मैं ना 2020 में रेंट पे शिफ्ट हो गया था कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे लाइफ में और जिस घर में मैं रेंट पे शिफ्ट हुआ था 3-4 महीने तक मैं उसका रेंट दे पाया उसके बाद नहीं दे पाया देन आई शिफ्टेड माई बेस टू नोएडा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा चीपर रेंट्स थे पर मेरी ज़िंदगी का एक सपना था कि मुझे एक घर लेना है जिस घर से वो घर दिखे जहाँ से मेरे को छोड़ना पड़ा ओके घर तो मैंने 1 साल के अंदर इतनी मेहनत की और ऊपर वाले का करम था सबका प्यार था कि मैंने सोचा था कि मेरी मॉम उस घर पे जाए उसकी छत भी हो उसकी छत से वो छज्जा भी दिखे जहाँ पे हम बैठ के बात करते थे तो मैंने वो 1 साल के अंदर अचीव किया मेरी मम्मी और मैं दोनों छत पे गए हमने वो घर देखा दूर से उसका 2nd फ्लोर ही दिख रहा था जहाँ पे मैं रहता था उस दिन मुझे लगा कि अब मैंने कुछ लाइफ में कर लिया बहुत बढ़िया ओके सो ये लास्ट सेगमेंट है देखा छोटा रखा है मैंने लास्ट सेगमेंट है तो इसमें आपने मेरे को बताना है झूठ के सच ट्रू और फॉल्स या फिर अग्री करते हो या नहीं करते ओके सब कहते हैं कि कोई भी आजकल पोएट बन सकता है इसमें टैलेंट की ज़रूरत नहीं है इसमें सिर्फ फीलिंग्स चाहिए इमोशंस चाहिए ट्रू और फॉल्स ट्रू ट्रू कि फीलिंग्स चाहिए टैलेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वोकैबुलरी चाहिए होती है ना वोकैबुलरी बचपन से है ना हमारे पास लोगों की सुन रहे हैं गाने सुन रहे हैं कहीं से कोई शब्द उठाना है कहीं से कोई फीलिंग रियल रखनी है हो जाएगा एक शायर को प्यार होना चाहिए एक बारी ज़िंदगी में वो तब शायरी कर सकता है ये मिथ है और रियलिटी है रियलिटी है कोई भी शायर नहीं बन सकता जब तक उसके पास कोई मुद्दा ना हो लिखने का और जब एक बार शायर लिखना शुरू कर देता है फिर शायर एक एक्टर हो जाता है जब उसको एक मोमेंट मिल जाती है ना ज़िंदगी में शायर बनने की उसके बाद फिर वो एक्टर बन जाता है फिर वो उस सिचुएशन में चला जाता है जैसे अगर आज मुझे दुख पे लिखना है मैं दुखी नहीं हूँ पर मैं 2 मिनट के लिए दुखी हो जाऊंगा और फिर लिख दूंगा शुरुआत तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो मोहब्बत ही है या दिल टूटना है बिल्कुल या पिता भी हो सकता है माँ भी हो सकती है कोई चाहिए लेकिन एक शायर को अपनी पोइट्री कभी भी मतलब एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को सुनते ही समझ आ जाए जो जवाब दे पाए उस चीज़ का तुरंत बिल्कुल सच है बिलीव मतलब क्योंकि देखो अगर मैंने कोई शायरी ऐसी बोली कि वो सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ या तो उसमें उतनी सच्चाई होगी तो लोग भी समझ जाएंगे बनावटी शायरी कभी लोगों को समझ नहीं आती जब आप रियल बात बोलते हो कनेक्ट करते हो ना आ जाती है देखो वोकैबुलरी भी होनी चाहिए और शायर सुनने का अंदाज भी होना चाहिए बिल्कुल ये भी हाँ, मेरा नेक्स्ट यही था कि जो पोएट्री है आजकल एक वो जो डेप्थ है वो खत्म हो चुकी है लोग नहीं सुनना पसंद करते क्यों क्योंकि उसके लिए बहुत डीपली सोचना पड़ता है और लोगों के पास वो इतना डीपली सोचने का टाइम ही नहीं है तो इज दिस ट्रू आज आपने देखा होगा 2 लाइनर शेर आए हैं सबसे डीप होते हैं एक शेर सुनाऊं आपको गुलजार साहब का शेर है जी कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मजबूर थी कैसे मान लूं मैं कैसे मान लूं कि तुम मजबूर थी शादी वाला लहंगा तो तुम्हारी पसंद का था ना ओह माय गॉड इज इट डीप आपको समझ में आया डीप भी है समझ भी आया क्योंकि इसके इमोशंस इतने प्यारे हैं गुलजार साहब ने क्या कमाल लिखा है ऐसे ही जॉन एलिया साहब ने एक शेर लिखा है कि मैं तुम्हें चांद तो तोड़कर नहीं ला के दे सकता मैं तुम्हें चांद तोड़कर तो नहीं ला के दे सकता अगर तुम जिद करो तो एक आईना ला दूंगा सो डीप बहुत बढ़िया अभी चलो जाते वक्त मेरे को कोई अच्छी सी कवाली सुना दो कवाली सुना दूं आ जाओ कोई भी जो मैं सुनाने वाला था मैं बहुत सुनाता हूँ लेकिन एक मेरी बहुत सादगी की बात चल रही है ना तो सादगी ही सुनाता हूँ आपको आज मैं ठीक है सादगी तो हमारी जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके
वादे पर कर लिया एतबार आपके, वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। और सुना सारी राज़दारियां संग तेरे, कह दे वो हम जो कह ना सके। देगी शिकवा किया सितम का तो नमदीदा हो गए, तुम तो जरा सी बात पे रंजीदा हो गए। जिक्र एक बेवफा सितमगर का था आपका, ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया। सारी राज़दारी संग तेरे, कह दे वो हम जो कह ना सके। Thank you so much. guys. Thank you. Keep listening to Razdariya only on Fever FM. Thank you so much. 107.2 Fever हो गाने बजण दो